we done yesterday? Sir, till respiratory tree. Okay, respiratory tract. Okay, fine. Let's start. Okay, any doubt, any problem? Want to ask anything? Hello, dear. Hello, sweetheart. You want to No, ask sir. anything? No? No. No, sir, Okay. अभी तो नहीं. Okay, start करते हैं. Okay. Yes, sir, start करते हैं. So, Hannah, here we are. So, Yes, sir. just a minute. Okay. So, skin is visible to you now? Hmm? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here we are. Hannah, we discussed like this conducting zone and this action zone. It is clear to you? Any problem in it, No, sir. बच्चों? Okay. Now, next. Now this is this is the diagram which is explaining an alveolar duct, atria, and alveolar and alveoli. Okay. So look here. So here it is. So this is the terminal bronchioles. Okay, it is visible to you. This is the terminal bronchiole. Then this is the respiratory bronchiole, and this is the alveolar duct. Okay, and this part is atrium, and this is the alveolar sac, and here it is alveoli. Hello, बच्चों. You Yes, need sir. to draw this Yes, sir. diagram. You need to draw this diagram, or you have to take a screenshot what you want, but you need this diagram. Okay, so this is terminal bronchioles. Okay, and this is the respiratory bronchiole, then alveolar duct, then atrium, then alveolar sac, and then alveoli. It is clear to you? Yes, sir. Okay, fine. सर हेलो ये बच्चों. एट्रियम क्या है? एट्रियम लाइक तीनों का कॉमन चैम्बर है इन थ्री का. ओके, कॉमन लाइक जहां से ये देखिए डक्ट. डक्ट ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है जहां से क्या जा रही है. हेलो, ये देखिए इसी पार्ट से क्या हो रहा है, ये ऑल थ्री जो है ब्रांचेज इसमें जा रहा है. देखिए दिस पार्ट इज एट्रियम. हेलो. सर जैसे हार्ट के चैम्बर्स में भी हम एट्रियम वर्ड यूज करते हैं तो कुछ लिंक है फंक्शन वगैरह का इनमें एट्रियम में? Yeah, it's not nothing, nothing. ATM is nothing like it's not like it is related with the heart. ATM means kind of chamber, kind of space where something is filled. So that is called, Hana. That's why it is called ATM. It is not like it's related with the heart or something. ATM means some chamber, Hana, which like accumulates something. Okay. Yes, sir. Hello. ओके सर. Yeah. So clear. So how it is the passage, like first alveolar duct, then atria, then alveolar sac, then alveoli. Okay, first alveolar duct, then atria, then alveolar sac, then alveoli. Look here again. Alveolar duct, then Yes, atria, sir. alveolar duct, then atria. So ये जो है, this is the duct. Just a minute.
So here, this is the duct, okay, and this is the atrium, and then this is the alveolar sac, and this finally this is the alveoli. Not clear? सर ये रेस्पिरेटरी डक्ट वाले पार्ट है हाँ, ये लास्ट वाला पार्ट है, इट इज द लास्ट वाला पार्ट है, ये इट्स द लास्ट पार्ट जो है ना, बिल्कुल जहां पर एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी ट्री या बिल्कुल टर्मिनल एंड जो है ना, ये वाला पार्ट है लास्ट वाला, ओके, जहां पर एक्सचेंज होगा, जहां पर एक्सचेंज होगा. यस सर Okay. Now, yesterday, I don't know, I told you or not, like, up C-shaped rings present up to which part? C-shaped rings, हाँ. सर ये Sir, terminal bronchioles. Yesterday I told you ना, I told you ना. Hello. यस सर Yeah, है ना, Yes, तो sir. C-shaped rings present up to the Yes, terminal sir. bronchioles, है ना. So remember this thing. Remember this. Terminal bronchioles means in conducting zone, है ना, in conducting zone. तो C-shaped rings present only in conducting zone. नहीं समझे? तो C-shaped rings हैं that present only in conducting zone. means जो एयर को कंडक्ट कर रहा है उसी जोन में क्या होगा, क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी. ओके. Respiratory zone means gaseous zone of the gaseous exchange. Clear or यस सर क्लियर okay? Now we'll discuss lungs. Okay. Now we'll discuss lungs. So lungs also called pulmons, है ना, technically, है ना, in technical scientific language, lungs also called pulmons, and that's why everything which is related with the lungs called pulmonary, like pulmonary artery, pulmonary diseases, pulmonary vein. You heard about that? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Anything which is related with the lungs called pulmonary, है ना, because the lungs are also called pulmons in a scientific language. Okay. Clear? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Lungs are endodermally derived. Lungs are endodermally derived. So they derived from endoderm. Remember this thing. They are endodermally derived. Clear? Okay. Lungs are situated in endodermally derived and situated in, it is already there, I think. Okay. A pair of lungs. Listen first, then we will discuss. A pair of lungs present in human, है ना, lie in airtight chamber known as thoracic cavity or chest cavity, है ना. So a pair of lungs जो है, lungs are endodermal in nature, like they develop from the endoderm germ layer, है ना. किस germ layer से develop होता है? endoderm से. ठीक है. A pair of lungs किस में present होंगे? ये thoracic cavity में. Thoracic cavity is also called Chest cavity. Cavity. is also called chest cavity. Okay. Clear? And this cavity is a airtight chamber. This is quite interesting. What the meaning of airtight chamber? What the meaning of airtight chamber here? Anyone can answer what the meaning of, just I'm सर वो yeah, नीचे से सर वो डायफ्राम से सेपरेटेड है और सर साइड साइड से सर वो रिबकेज से है प्रोटेक्शन हो okay. Actually, I didn't get you. Means not clear. No problem. Just look here. Look here. I told you it is airtight chamber, like thoracic cavity. I am visible to you, bacha? I'm Yes, visible to sir. you. Yeah. I told you, like the thoracic cavity is a airtight cavity. So how I'm going to explain this? Just give me some time. Okay. Like there is a balloon. Okay. There is a one big balloon.
Okay, okay, Yes, sir. for listening me. Yes. One big Yes. balloon, and the big balloon is and big balloon contain another small balloon. Okay, okay. Yes, sir. Inside the big balloon, there is a small balloon which is filled with the air, and so there is a space between the big balloon and small balloon. There's a space between the big balloon and small balloon. In this space, air is filled. In this space, air is filled. Look here. Just a minute. Just see here. There is a one balloon. Okay, clear? Yes, sir. And there is another balloon. Okay, and Yes, sir. between these two balloons, the area is filled with Air. air. It's very tight, like you cannot press it. Okay, like आपने कभी पानी की Yes, sir. बोतल बिस्लेरी की बोतल देखी है ना? Yes, sir. बिस्लेरी बोतल, तो बिस्लेरी की बोतल का जो आप कैप है, उसका ढक्कन है, उसे बंद कर दीजिए. ओके, एंड देन आप उस बोतल को प्रेस कीजिए, तो एक लिमिट के बाद में बोतल प्रेस नहीं होगी. नहीं समझे? हेलो, सर समझ गए सर. समझ गए ना? मींस अभी उसमें एयर पूरी तरह से भर गई है, अब उसमें स्पेस नहीं है एयर को इधर उधर जाने की. एयर टाइट हो गया है वो. ठीक है, तो इन दोनों बैलून के बीच में एयर टाइट है. मींस अगर आप इस बैलून को धक्का दोगे तो एयर की इतनी डेंसिटी है कि ये पिचकेगा नहीं, है ना? ये उतना ही धक्का इस बैलून को देगा और ये बैलून उतना ही अंदर की तरफ चला जाएगा. नहीं समझे? नहीं समझे आप? सर ये बाहर और अंदर वाले बैलून है क्या? ये अंदर वाला बैलून लंग्स है और बाहर वाला बैलून चेस्ट है. अरे अच्छा सर. ये पूरा ही रेज हो जाता है. अंदर वाला बैलून क्या है एक्चुअली इसमें ना? अंदर वाला लंग, बाहर वाला चेस्ट कैविटी. हाँ, दोबारा बना रहा हूं मैं. प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ये पूरा इरेज हो जाता है. मैं जितना चाहता हूँ इरेज करूं उतना नहीं हो रहा है. Just तो ये अंदर वाला बैलून क्या है? लंग्स. ओके, एंड बाहर वाला बैलून क्या है? थोरेसिक कैविटी. दिस इज द थोरेसिक कैविटी. ओके, क्लियर? Yes sir. And this cavity is filled with what? Air, and it is airtight, like there's no space. Means it is tightly filled with the air. Okay, if you press this balloon, okay, the balloon will invaginate towards inside, है ना? It move inside, and the same balloon will also move inside. Just a minute. Not clear?
हेलो सर बच्चों। सर क्लियर सर। सर मतलब अगर हम बाहर से दबाएंगे तो वो बीच में काफी ज्यादा मतलब प्रेशर होने के चक्कर वो अंदर वाली चीज दबेगी, बीच का स्पेस यस, वो जो। उतना जितना अंदर प्रेस होगा उतना ही वो अंदर को प्रेस करेगा, लेकिन ये जो गैप है ना वो उतना ही मेंटेन करेगा, उतना ही मेंटेन करेगा जितना गैप अभी है नॉर्मल कंडीशन में। नहीं समझे? सर समझ गए। समझ गए सर। बिकॉज द समझ सेंट्रल जो बीच में जो स्पेस है दैट इज टाइट, उसको आप और ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते। आप बिना अंदर के बैलून को प्रेस किए आप उसको अंदर की तरफ दबा नहीं सकते। अगर वो अगर बाहर वाला बैलून अंदर की तरफ दबेगा तो अंदर वाला बैलून भी अंदर की तरफ दबेगा, तभी आप बाहर वाले को दबा सकते हो, क्योंकि बीच में जो स्पेस है दैट इज एयर टाइट, उसमें स्पेस। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्या Yes, sir. आपने, आई डोंट नो, आपने कभी ऐसे सोचा कि नहीं सोचा? आपको पता लंग्स में कोई मसल्स है क्या? कोई मसल्स होती है कि लंग्स के अंदर सर कोई? नहीं है सर। अच्छा, आपने अब कभी आपने नॉनवेज खाया है कि चिकन खाया है? आपने चिकन खाया है? चिकन मटन जो भी खाया खाया है? नो सर। नहीं खाया? अच्छा, Yes, जो sir. लोग नॉन वेज है वो बताएं, आप लोगों ने खाया कभी चिकन मटन? Yes, sir. उसमें आपने लिवर देखा है? उसका लिवर, लिवर देखा है उसका? उनका लिवर देखा है कभी? हेलो, लिवर लंग्स Sir, देखे कभी? कैसे लिवर या स्ट्रक्चर लंग्स होता देखा है है कभी? उसका? सर लंग्स स्ट्रक्चर लिवर, कैसे होता है उसका? अरे थोड़ा सा चॉकलेटी बता चॉकलेटी कलर के दीजिए। नहीं देखे आपने? चॉकलेट चॉकलेटी कलर नहीं सर देखा उस? सॉफ्ट सॉफ्ट सा मच्छी सा जो होता है। थोड़ा सा चॉकलेटी चॉकलेटी कलर। यस सर, यस सर, देखा है सर। खैर चलिए छोड़िए, अब कई लोग देखा नहीं है तो वो उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। तो लंग्स के अंदर कोई भी मसल्स नहीं होती, तब भी लंग्स फैलते हैं। आपने देखा होगा, लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? ऐसे फैलते हैं। उनका वॉल्यूम क्या होता है, कम ज्यादा होता है नहीं होता? यस सर, उसके साथ छाती भी हमारी फैलती है। हाँ, चेस्ट, तो जो अपना चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, वो फैलती है। तो मेरे कहने का मतलब है, और लंग्स भी फैलते हैं, तो लंग्स में कोई मसल्स तो है नहीं, तो लंग्स कैसे फैलते हैं? सर वो लंग्स, डायफ्राम की वजह से, और साथ में जब हम एक्सेल और इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी अंदर बाहर आती है, तो उसके कारण होते हैं। मीन्स मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम अंदर एयर लेते हैं इसलिए चेस्ट कैविटी फैल जाती है, ऐसा? सर डायफ्राम की मूवमेंट के कारण। डायफ्राम की मूवमेंट के कारण एयर अंदर आ जाती सर सर डायफ्राम ऊपर की और फिर जो रिब केज है वो थोड़ा बाहर, सर यही पड़ा था सर। है। रौनक, रौनक, हेलो मिस्टर रौनक, व्हाई रेज्ड योर हैंड? हेलो रौनक, व्हाई रेज्ड हैंड? रौनक, हेलो रौनक, व्हाई यू रेज्ड हैंड? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ चलिए छोड़िए, अभी इसके बारे में बात करते हैं अभी हम, है ना? आप बस इतना सुनिए, सुनिए आप। थोरेसिक कैविटी एयर टाइट कैविटी है, लंग्स के अंदर कोई मसल्स नहीं होती, स्टिल लंग्स फैलते हैं। तो आपने कहा कि डायफ्राम के मूवमेंट के कारण फैलते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें लोगों ने की। तो डायफ्राम लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है? डायफ्राम कैन अफेक्ट द थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम जो है वो थोरेसिक कैविटी को अफेक्ट कर सकता है, बट हाउ इट अफेक्ट लंग्स? सर जैसे सर कि फिर यस, सर सर मैं बताऊं। हाँ बोलो। सर जैसे कि जो थोरेसिक कैविटी है, अगर वो उसको थोरेसिक कैविटी को ऊपर की ओर मतलब पुश करेगा तो थोरेसिक कैविटी तो अनअफेक्टेड रहेगी, जैसे कि बलून वाला एग्जांपल था। तो उससे जो प्रेशर होगा वो हमारा लंग्स की वो तरफ जाएगा, और उससे हमारे लंग्स अफेक्टेड होंगे। और फिर वो लंग्स होंगे, अगर वो प्रेशर ऊपर की आ रहा है तो लंग्स हमारे कंप्रेस हो जाएंगे। ऐसे अगर वो नीचे की ओर होगा तो थोरेसिक कैविटी पे वो प्रेशर सीधा लंग्स पे जाएगा और फिर लंग्स नीचे की ओर आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अभी तुम्हें समझ में आया कि जो, देखिए, अगर आप थोरेसिक कैविटी को प्रेस करोगे तो थोरेसिक कैविटी प्रेस होगी, उतना ही थोरेसिक कैविटी किसको प्रेस करेगी? अंदर लंग्स को। यानी द चेंजेस व्हिच अकर्स इन थोरेसिक कैविटी, द सेम चेंजेस विल अकर इन लंग्स। तो लंग्स ऐसे और ऐसे हो रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द थोरेसिक कैविटी। लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी नहीं है इन्फ्लेट होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की।
नहीं समझे मेरी बात? कोलैप्स है ना, कोलैप्स होना, इन्फ्लेट होना, इस तरीके से है ना, ये है ना, इस ये कैपेसिटी लंग्स के अंदर नहीं है. द चेंजेस विल अकर इन चेस्ट कैविटी, thoracic cavity, the same changes will occur in lungs. Hello, Yes, sir. is it clear to you? Is it Yes, clear sir. to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now look here. It is clear now, the concept of the airtight chamber. थोरेसिक कैविटी के एक्सपैंड होने की वजह से होता है. Yes, thoracic cavity कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे. thoracic cavity क्या करेगी? क्या करेगी? रिलैक्स करेगी, है ना, तो वो भी रिलैक्स करेगा. क्लियर? The changes which occur in thoracic cavity, the same changes will occur in lungs. सर Yeah, सर tell. थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कैसे होती है सर? और हाँ, वो हम बात करेंगे, वो कैसे एक्सपेंड होती है. I will discuss further. Okay. यस सर. Yeah. Now this cavity is formed dorsally by, एक cavity किससे बनी होती है? dorsally by, this cavity is formed dorsally by the vertebral column Vertebral column. and ventral by, Sternum. and lateral by. Ribs. It is closed below by the, Diaphragm. which is, Dome shaped. you know what the meaning of dome, like this type of structure. This type of structure is dome shaped structure. Okay, it is clear. Yes, sir. Yeah. So this cavity is made up of dorsally vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs. It is closed below by the diaphragm, which is dome-shaped structure, made up of muscles. है ना, इसमें muscles होंगी. कौन सी muscles होंगी? We'll discuss further. ठीक है? And separates thoracic cavity from abdominal cavity. तो ये क्या करेगा? ये thoracic cavity को abdominal cavity से क्या करेगा? सेपरेट करेगा. और एब्डोमिनल कैविटी किसको कैरी करता है? इस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. क्लियर टू यू Yes, बच्चे? sir. क्लियर? ओके, चलें क्या हम आगे चलें? हाँ बच्चे, क्या बोले? सर स्टर्नम क्या है? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. आई जस्ट टेल यू, ओके. स्टर्नम क्या है नहीं पता ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल टेल यू. जस्ट अ मिनट, just a minute. Sternum. I'm showing you diagram, beta. Just a wait. Just wait for a while. Look here. It is visible to you? Yes, sir. Yeah, this diagram is visible to you. Yes, sir. So this is the front part. This is the front part. Okay, this is called
स्टर्नम, दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। मैं दिख रहा हूँ आपको? मेरा कैमरा ऑन है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, so here it is, look, आपको दिख रहा है यहाँ पर? ये जो है दिस इज द ब्रेस्ट बोन, चेस्ट है ना, ये जो पार्ट है दिस इज द ब्रेस्ट बोन, समझे? ठीक है। यस और ये सर। क्या है? दीज आर द रिब्स, रिब्स, ओके, रिब्स, समझे आप? Yes, sir. और उसके बैक साइड में ये क्या है? दिस इज द वर्टिब्रा कॉलम, दिस इज वर्टिब्रा कॉलम। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? इस तरह से डायफ्राम, समझे? मैंने आपको पहले डायग्राम में भी बताया, फर्स्ट डायग्राम में भी बताया था डायफ्राम, याद है आपको? फर्स्ट डायग्राम जब मैंने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया था। यस सर। Yes, sir. अभी ब्रेस्ट बोन सर। समझ में आया आपको? ब्रेस्ट बोन अभी समझ में आया? Yes, sir. ओके, क्या हम आगे चलें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, फाइनली तो लंग्स क्या है? एंडोडर्मली डिराइव्ड है। कहां पर सिचुएटेड है ये? थोरेसिक कैविटी में और चेस्ट कैविटी में। इतनी बात हमने वहां पे क्लियर की है ना? ठीक है। और ये जो कैविटी है इट इज मेड अप ऑफ डॉर्सली वर्टिब्रा कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, स्टर्नम, laterally ribs, and down it is डायफ्राम। closed by, below it is closed by diaphragm, below it is closed by diaphragm. Okay, यस सर। clear? Okay, now look here. So this is the right lung, this one is the right lung, okay, this one is the right lung and this one is the left lung. So first you see the diagram, left lung, okay. So right lung is जो है, that is right lung is broader but shorter, broader, thicker but shorter, okay, and divide in 3 lobes, where left lung is narrower, है ना, narrower but longer, and below than right lung, and below than right lung. नहीं समझे? हेलो बच्चों, सर ये आपने लास्ट में क्या बोला? बिलो देम राइट लंग। below than right lung, right lung से नीचे है, अच्छा यस सर। अच्छा its position is below, it's below, because in right side there is a liver, here is a liver, लीवर। है ना, so liver push this lung just above, okay, so Yes, left sir. lung is है ना, यस सर, समझ below में आ गया। in position than right lung, clear हुआ? Yes, sir. Sir. And right lung जो है it is divided in only 2 lobes, टू clear? Lungs enclosed किसमें? प्लूरल Enclosed कैविटी। in pleural cavity, and this pleural cavity has 2 membrane, outer pleural membrane and inner pleural membrane. The outer pleural membrane is called visceral, outer is parietal and inner is visceral. विसरल। और इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा? प्लूरल फ्लूइड। Pleural क्या fluid. मिलेगा आपको? प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये लंग्स के मूवमेंट को कैसा बनाता है? फ्रिक्शन फ्री। इट मेक द मूवमेंट ऑफ द लंग्स फ्रिक्शन फ्री। समझ गए? यस सर। ये जो 3 लोब्स हैं ये आपस में डिवाइड है किससे? फिशर। फिशर से। इससे डिवाइड है फिशर। तो आप देखिए ये देखिए, दिस इज द सुपीरियर लोब, दिस इज द मिडिल लोब, सर किससे डिवाइडेड है? हाँ बेटा, सर किससे डिवाइडेड है? एक बार दोबारा बोल दीजिए। फिशर 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 फिशर। तो सुपीरियर लोब को मिडिल लोब से डिवाइड किया किसने? हॉरिजॉन्टल फिशर, है ना, एंड मिडिल लोब को इंफीरियर लोब से डिवाइड किया किसने? ऑब्लिक फिशर ने। नहीं समझे? समझ गए समझ सर। मैं समझ गए। यस, एंड लेफ्ट लंग जो है
it is divided in two lobes, superior lobe and inferior lobe, and which is separated by oblique fissure, which is separated by oblique fissure. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And here, this is the mediastinum. The space between the two lungs is called mediastinum. Here, heart is situated and tilted towards left. Left. So the left lung has cardiac notch. A depression that is called cardiac notch. Cardiac notch. It is clear or not? सर क्लियर है सर. Clear, इस sir. डायग्राम में कोई प्रॉब्लम आपको? सर हम्म सर दोनों लंग्स का जो मास होता है वो सेम होता है या डिफरेंस होता है कोई? अरे वो अभी आएगा बेटा. अलग होगा, सेम कैसे होगा? आपको साइज नहीं दिख रहा? सर साइज कब लेकिन ज्यादा? एक चौड़ा है और एक थोड़ा लंबा सा है, तो क्या पता उसकी वजह से। नहीं, थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन उतना भी लंबा नहीं है, है ना? राइट लंग का वजन ज्यादा होता है लेफ्ट के कंपेरिजन में. ओके. यस. एनी प्रॉब्लम इन इट? एनी प्रॉब्लम इन दिस बेटा? नो सर. सर हमने बोला था कैविटी, थोरेसिक कैविटी एयर टाइट है, बट रिब्स के बीच में तो स्पेस होती होगी ना, तो मतलब एयर तो फ्लो कर ही सकती है उनके बीच में से. ओहो बेटा. अच्छा, ये रिब्स जो है ना, रिब्स जो होती हैं, रिब्स का मतलब आपको क्या लगता है? रिब्स के बीच में स्पेस होती है, लेकिन क्या वो स्पेस, आप, अरे बाप रे, आपने ये तो बहुत बड़ी बात कर दी. चलिए आइए बताते हैं आपको. रिब्स के बीच में स्पेस जब होती है, जब आप खाली स्केलेटन देखते हो. जब बॉडी देखोगे तो उनके बीच में मसल्स होंगी, पेरिटोनियम होगी, स्किन हो, वो पेरिटोनियम होगी, वो पूरा कवर्ड होगी. ऐसा तो ना अकेली हड्डियों का ढांचा ऐसा स्केलेटन आपको दिखेगा, वो पूरा मसल्स से वो पूरा बंद होगा. ये नहीं समझे? हेलो? यस सर, समझ गई. बिल्कुल ना? यस सर. हाँ जी, है ना? तो ऐसे नहीं बोलना अभी आप ना. ठीक है. एक एक लुक, आई एम विजिबल टू यू. हाँ. Yes, sir. तो मेरा, तो ये जो यहाँ पर जो रिब्स हैं वो स्केलेटन में आपको खाली दिखती हैं, लेकिन रिब्स के बीच में मसल्स, पूरा पेरिटोनियम पूरा कवर्ड होगा. आपने कभी देखा नहीं है किसी की पूरा फ्लैश होगा, मीट होगा वहां पे, फ्लैश होगा. समझे? हेलो? यस सर. ओके. चलें आगे. सर पेरिटोनियम क्या है? अच्छा, पेरिटोनियम नहीं मालूम आपको? नो सर. अरे बाप रे. हो हो. अच्छा, आप चलिए दोबारा देखें. एक मिनट आप देखो मुझे. आपने कभी सीलोम पढ़ा है? सीलोम, सीलोम. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो सीलोम में आपने पढ़ा है कि मीजोरम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. एक एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है, एक बॉडी वॉल को लाइन करती है. सुना है? सीजोसिलिक सीलोम, साइजोसिलिक पढ़ा होगा आपने. स्प्लिटिंग ऑफ मीजोरम, स्काइजो नहीं सुना आपने? सुना है. सुना है ना? तो उसमें क्या होता है? इट्स फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोरम. सुना है आपने इसे? यस सर. Yes, sir. Yes, तो sir. वन पार्ट, तो inner part of the mesoderm form the covering of the alimentary canal, and outer part of the mesoderm forms the lining of body wall. You heard this or not? यस सर. Yes, sir. तो जो alimentary canal का covering बनाता है, that is called visceral peritoneum, and जो body wall की lining बनाता है, that is called parietal peritoneum. नहीं समझे? Still not clear? मेसोडर्म को ही हम वो कह देते हैं जब वो डिवाइड होके लाइनिंग्स बना लेती है. मेसोडर्म बहुत ही एकदम थिन, फाइन, ट्रांसपेरेंट, व्हाइट कलर की शीट जो होती है ना, दैट वो पेरिटोनियम उसको कहते हैं हम. तो वो मेसोडर्म ही है. मेसोडर्म दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है. द आउटर पार्ट फॉर्म द, एक मिनट में डायग्राम दिखाता हूँ, देखो एक मिनट.
जस्ट मिनट। सर मीजोडर्म जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही बोलते होंगे, उसके बाद स्प्लिटिंग के बाद पेरिटोनियम बोलते हैं। नहीं नहीं, मिजोरम तो जर्म लेयर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को पेरिटोनियम बोल रहा है। दिस इज एक्चुअली आ पार्ट ऑफ द मिजोरम। नहीं समझे आप? नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ओके, लुक हियर, जस्ट मिनट। देखिए, लाइक there is a this is the body wall. Okay, this is the body wall, and then this is the alimentary, यहाँ पे alimentary canal है। so this is the alimentary canal। okay, और ये क्या है? बॉडी वॉल है ना? इसके Yes, बीच में सारे ऑर्गन्स रखे होते हैं, नहीं बीच में लंग्स, किडनी, फिडनी जो भी है वो सब इसी सीलोम में तो रखा हुआ है ना? yes sir. तो यहाँ पर भी मिजोरम जो है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होगा। ये जो बीच की स्पेस है, दिस इज द सीजोसिलिक। कोई भी मतलब सीजो से अच्छा आप बोलिए यूसिलोम। दिस इज यूसिलोम। समझे क्या? Yes sir. तो यूसिलोम है। तो ये जो बाहर वाली जो मिजोरम है उसको हम क्या कहेंगे? पेराइटल पेरिटोनियम। और अंदर वाली को क्या कहेंगे? विसरल पेरिटोनियम। Yes दिस sir. इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम, दिस इज कॉल्ड पेराइटल पेरिटोनियम। समझे क्या? Yes sir. हेलो बच्चों। और ये बिल्कुल व्हाइट कलर की शीट होती है, व्हाइट कलर की, अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट होती है व्हाइट कलर की। समझे क्या? Yes sir. इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है क्या? सर ये मतलब कि कैसे हो Sir. सकती है? बीच में तो ऑर्गन भी होंगे, वो सब उनके बीच से कैसे रहेगी? अरे ऑर्गन्स के बीच में नहीं है बेटा, अरे बापू बापू बापू, अरे ऑर्गन के बीच में क्यों होगी बेटा? ऑर्गन को कवर करेगी ना बाहर से। बॉडी वॉल की लाइनिंग बना रही है, दैट मीन्स ऑर्गन्स को कवर करेगी बाहर से। सर नहीं सारे समझे? कवर करेगी। ऑर्गन्स के ऊपर होगी ना, ऑर्गन्स के ऊपर, और फिर एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होगी। नहीं समझे? ऑर्गन्स के ऊपर होगी और फिर एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होगी। सर भाई बॉडी वॉल सारे के ऑर्गन्स के ऊपर नीचे। होगी। हाँ सर सारे ऑर्गन्स के ऊपर होगी, बॉडी के जितने भी हैं। हाँ, सारे ऑर्गन्स के ऊपर होगी। आप टांगों में नहीं मिलेगी आपको, जहाँ कैविटी है वहीं मिलेगा, जहाँ पाइप है वहीं मिलेगा। टांगों में कोई पाइप नहीं है ना, तो वहां नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब चलो एक बार मैं सारे। दोबारा से, एक बार दोबारा से बताता हूँ कुछ और तरीके से। चलो देखो, एक मिनट। आइए, देखो, देखिए मुझे, देखिए। आप जब यस सर। हमारी, सुना आप मेरी बात। आप जब स्किन को कट करेंगे, आप जब स्किन को कट करेंगे, अच्छे से सावधानी से करेंगे स्किन को कट। तो स्किन को जब आप निकालेंगे तो आपको एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन दिखेगी, जिसके नीचे से आपको सारे ऑर्गन्स वगैरह दिख रहे होंगे। उस वो जो मेम्ब्रेन है, उससे आप वो देखोगे तो वो बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होगी, थिन मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर की है। दिस इज प्राइटल पेरिटोनियम। उसको हटाओगे आप तो ऑर्गन्स आपको दिखेंगे, ऑर्गन से चिपकी होगी वो। फिर आप ऑर्गन्स को हटाओगे तो आपको फिर एक और शीट मिलेगी, व्हाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट। दिस इज विसरल पेरिटोनियम। और उससे आपको क्या दिख रही होगी? एलिमेंट्री कैनाल का पाइप। नहीं समझे? हेलो? मतलब सर पेरिटोनियम दो दो प्रकार के हैं। पहली वो है जब हम मतलब बाइस डाइसेक्ट करेंगे किसी बॉडी को, तो सबसे पहले जब उसके स्टर्नम को खोलेंगे तो उसके बाद मिलेगी ये वाली, या फिर स्टर्नम को ओपन करने से पहले? पैराइटल पेरिटोनियम। जस्ट मिनट।
जस्ट मिनट। सर ऐसे ही बता दीजिए ना, पेस्ट करने में तो फिर इसी में बता दीजिए, ये भी शेयर हो रही है। तो ये भी शेयर हो रही है क्या? ओ वेल, अब डायरेक्टली उससे दिखाना जी थोड़ा ठीक नहीं एक्चुअली इसमें। तो इसी से देख लीजिए, ये देखिए। चलिए उसको, लेकिन हम उसमें इस तरह से दिखाना ठीक नहीं है एक्चुअली। चलिए मैं दिखाता हूँ, इसी स्लाइड में ही दिखाता है। उसमें उसमें कुछ लिख सकता हूँ ना, वहां लिख नहीं पाऊँ। लुक, देखिए आप जैसे स्किन को ऊपर कट करेंगे, है ना, तो ये बहुत सारी लेयर्स आपको मिलेंगी। देखिए ये देखिए यहाँ है ना। फिर आपको जो व्हाइट शीट मिलेगी, दैट इज द कट के अंदर दिखा रहा है ना। तो ये देखिए, दिस इज द पैराइटल पेरिटोनियम। आई बात समझ में? आप इसको हटाओगे तो ये सब ऑर्गन्स के ऊपर ऐसे लिपटी होगी, और पतली सी मेम्ब्रेन। आप इससे हटाएंगे तो ऐसी मेम्ब्रेन आपको फिर, ऐसी ही पतली सी मेम्ब्रेन आपको फिर दिखेगी। फिर आएगी एलिमेंट्री कैनाल। हेलो? अच्छा सर। यस सर, आ गया समझ। समझे? हाँ, यस सर, यस सर। मतलब जैसे कि तो इधर ये यस सर। इंटेस्टाइन का जो दिखा रखा है, तो सर जब हम मतलब स्किन हटाएंगे, उसके बाद जो फैटी लेयर होती है उसको हटाएंगे, तो उसके बाद हमें दिखाई नहीं नहीं, देगी। ये इंटेस्टाइन नहीं दिखाई हुई है, दिस इज नॉट द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन नहीं है कोई, ये तो बाहर वाली है। नॉट इंटेस्टाइन नहीं दिखाया है ये तो सिर्फ, ये तो प्राइटल पेरिटोनियम दिखाई है उसका। सर जो इसके नीचे पैराइटल पेरिटोनियम है ये ट्रांसपेरेंट होती है नहीं होती? ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रांसपेरेंट, ओके। ट्रांसपेरेंट, है ना। और सर इसके ट्रांसपेरेंट नीचे होगी तो होगा। बिल्कुल। इसके नीचे आपको सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, रिबकेज वगैरह सब इसी के अंदर होगा। फिर रिबकेज को काटोगे, सब हटाओगे, लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह सब हटाओगे, है ना। फिर अंदर वाला पाइप मिलेगा आपको, एलिमेंट्री कैनाल, उस पाइप के ऊपर भी ऐसी ही सीट होगी। यस तो सर, आ ये गया समझ में। पेरिटोनियम जो है, ये एक तरह से पैकेजिंग का काम किए हुए है, ऑर्गन्स को पूरा पैकेज किए हुए है। समझे? चीजों को अपनी जगह सस्पेंड किए हुए है। यस सर। क्लियर? आप जब अगर आप डॉक्टर बनेंगे, आप अगर डाइसेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इस पेरिटोनियम को काटा नहीं, इसे काटना नहीं चाहिए, एक इसमें कट नहीं लगना चाहिए। जब स्किन को, जब जब भी ऑपरेशन करते हैं, है ना, सर्जरी करते हैं, तो इस तरीके से काटते हैं। ये पेरिटोनियम को, ये पेरिटोनियम नहीं करती स्किन, है ना। ऐसा नहीं कि लिया और नाइफ ऐसे सीजर और काट दिया, खच 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 खच। समझे मेरी बात? कोई बहुत इस तरह से काटते हैं कि पेरिटोनियम नहीं कटनी चाहिए, ये तो सर बेसिकली अगर ऑर्गन्स वगैरह इंजर्ड हो जाए। सर अगर पेरिटोनियम अगर नहीं कटेगी तो सर हमें नीचे का हम कैसे देख पाएंगे? नहीं नहीं, काट के उसको काटना नहीं है, उसको हटा के देखते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, प्लस साइड से कर देते हैं उसको। अच्छा। समझे? हाँ सर, हाँ। चलें क्या आगे? यस सर। यस सर। यस। ओके, तो ये आपको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, जस्ट मिनट। डायग्राम क्लियर हो गया ना? यस सर। अब इससे रिलेटेड थ्योरी सारी जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ईच लॉन्ग, है ना, ईच लॉन्ग
enclosed by two membrane known as pleura or pleural membrane. Clear? Outer, ये सब बता ही चुका हूं मैं. Outer pleural membrane is in close contact with the thoracic cavity, whereas inner pleural membrane is in close contact with the lung surface. In between these two membranes, a narrow space is present, known as pleural cavity. A pleural cavity is filled with pleural fluid. क्या भरा है इसके अंदर? Pleural fluid. Clear? Yes, sir. The pleural fluid lubricates the pleural membranes so that they may slide over each other without friction during breathing. क्लियर? ये जो दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर क्या कर पाए? स्लाइड कर पाए विदाउट फ्रिक्शन. सो ये काम करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा कौन? प्लूरल फ्लूइड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. If fluid is not present, then there will be damage to membranes which finally affect the breathing. Sometimes due to bacterial infection, the amount of this fluid increase, so the organism feel difficulty in breathing and severe chest pain. And the severe chest pain, right? Pain during the breathing, and this is called dyspnea. Dyspnea means painful breathing, and this disease is called pleurisy. नहीं समझे? समझ गए sir. समझ Sir, गए और तो सर. इस अस्थमा होता प्लूरल है. मेम्ब्रेन में देखिए, प्लूरल फ्लूइड ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. तो समटाइम ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन. क्या हो जाता है इसके अंदर? इन्फ्लेमेशन. तो ये तो प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एंड दैट विल लीड्स टू चेस्ट पेन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग. दिस इज डिस्पनी. और इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? प्लूरिसी. यानी प्लूरिसी के अंदर क्या होगा? डिस्पनी होगा. नहीं समझे? समझ गए सर. Yes, Yes. sir. समझ गए सर. समझ गए सर. ओके, नाउ देखें. Sir, हाँ बेटा. sir बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो फ्लूइड बढ़ कैसे जाते हैं? इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन इन्फ्लेम कर जाती है. प्लूरल मेम्ब्रेन. जैसे सर, आपने देखा होगा, आंखों में, आंखें जब लाल हो जाती है, रेड आई जब, है ना, तो बहुत सारा आंखों में कीचड़ निकलता है. देखा है वो कीचड़ निकलता है. कोई भी चीज इन्फ्लेम हो जाती है तो वो प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा फ्लूइड निकालने लग जाती है. सर मतलब जो वो फ्लूइड होता है वो मेम्ब्रेन से ही निकलता है. हाँ, वही मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेंगे उसको. ओके सर. ओके. तो सर ये वाला जो फ्लूइड होगा ये तो फिर लंग्स के अंदर चला जाएगा. अरे लंग्स के अंदर क्यों जाएगा? तो लंग्स से बाहर है. लंग्स के अंदर क्यों जाएगा? ये मेम्ब्रेन तो लंग्स से बाहर है ना बेटा. हाँ सर. नहीं समझे? सर फिर दिक्कत क्यों मुझे? अच्छा हाँ. अरे लंग जब ऐसे ऐसे करेंगे तो दोनों मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग रहती है ना. तो जब भी लंग्स ऐसे ऐसे इधर होंगे तो मेम्ब्रेन भी तो इधर उधर होंगी. हाँ सर, वो मैं कुछ और सोचा था, समझ में आ गया सर. ओके. देखिए, लंग्स आर पिंक एट बर्थ. बर्थ के समय क्या होते हैं? पिंक. उसके बाद में हम सुट्टा पी के, है ना, सुट्टा जानते हैं ना आप लोग? यस सर. सुट्टा पी के खासकर आजकल के यंग जनरेशन वाले लोग जो है धुआं उड़ाने को बहुत ही कूल समझते हैं, है ना. इट्स कूल बेबी. है क्यों? इट्स कूल और अनकूल. नो सर. वो सर हार्मफुल होता है सर, बहुत ज्यादा. हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा, बट बच्चे तो बहुत कूल समझते हैं सबको कि तो बहुत कूल है. ऐसे क्यों समझते हैं बच्चे? सर क्योंकि वो उन्हें फूल बहुत- होते हैं क्या होते हैं? उन्हें नॉलेज नहीं है इन सब ना, बातों फूल की. होते हैं. ओके, नॉलेज नहीं होती है उन बच्चों को, इसलिए ऐसा समझते हैं. नॉलेज तो होती है लेकिन उनको हैबिट बन चुकी होती है. ओके. अच्छा, नॉलेज होती है बट हैबिट बन चुकी होती है. बट लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइक दिस स्मोक, है ना. और और अगर कोई और बच्चा उन्हें बोलता है कि स्मोकिंग इज नॉट अ गुड थिंग, देन दे से ओह व्हाट, यू आर जस्ट काइंड ऑफ पप्पू, बी अ मैन, बी अ कूल. है
ऐसे बोलते हैं वी आर मैन, यू आर जस्ट अ ममास बॉय एंड लाइक काइंड ऑफ तो पप्पू। फिर वो साइंस वाले नहीं होते होंगे ज्यादा। हाँ ये तो है, साइंस वाले नहीं होते हैं ना, कॉमर्स आर्ट वाले होते हैं। तो लेकिन स्टिल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा साइंस के भी होते हैं, स्टिल दे स्मोक। आई एम नॉट सेइंग कि स्मोक, मतलब मैं ऐसा तो नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एथिकल कि इट इज एथिकल और नॉट, है ना, कि इसे आप एथिकल मोरालिटी की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोरालिटी, but yes, scientifically it is not the cool, it is not a sign of the cool. It's like smoking and like, है ना, and making rings of the smoke, है ना, it is no more cool. Okay, कुछ बच्चे से छल्ले बनाते हैं, छल्ले, एयर में स्मोक के छल्ले बनाते हैं रिंग्स, एंड दे फील लाइक इट इज कूल। इट्स नॉट कूल, है ना, इट्स नॉट कूल। तो सर पॉल्यूशन भी तो काफी ज्यादा है। हाँ, सर पॉल्यूशन भी तो है उसके अलावा। तो pollution, तो we created the pollution. Who's the responsible for the pollution? Like nature is not the responsible. Nature is always try to manage the things, but we people, the greedy people, we destroy the nature, है ना? Yes, sir. Then so we did everything we did, and still doing, keep doing, हाँ? लोगों के घर में तो पैसा आता है तो कार, इतनी सारी कारें आ जाती हैं लोगों के घरों में, चार चार पांच पांच कार्स आ जाती हैं। पापा अलग कार से जा रहे हैं, मम्मी अलग कार से जा रही है, भाई एक वो लड़का अलग कार से जा रहा है, लड़की अलग कार से जा रही है। तो सर रेस्पिरेशन कितना बड़ा चैप्टर है? हाँ बेटा, सर रेस्पिरेशन कितना बड़ा चैप्टर है? बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है कंपैरेटिवली। ओके, समझे? चलें आगे। यस यस सर। तो देखें यहाँ पर, so lungs are pink at birth, they become dark gray and mottled in adult due to the deposition of carbonaceous materials. Darkening increase in smokers and person exposed to pollutants. Okay, clear? Yes sir. The right lung is shorter due to the raised position of the diaphragm on the right side to accommodate labor. Its weight, आइए कोई बच्चा पूछ रहा था सर वेट क्या है, 625 ग्राम। The right lung, the weight of the right lung is 625 gram. The right lung had two fissures, horizontal and oblique. They divide the right lung into the three lobes, superior, middle, and inferior. Okay, Yes clear? sir. Yes, sir. And the left lung is longer. Its weight is 565 gram. It is, however, narrower than the right lung because it contains a cardiac notch for accommodating a symmetrical placed heart. लेफ्ट लंग इज डिविजिबल, तो इसका वेट कितना है लेफ्ट लंग का, 565 ग्राम। सो इट इज लेस, है ना, लेफ्ट लंग इज लाइटर देन Right lung. Right lung. the left lung is longer but narrower. The weight is 565 gram. It is however narrower than the right lung, and because it contains the cardiac notch for accommodating asymmetrically placed heart. Left lung is divisible by an oblique fissure. Okay, into two lobes, left, है ना, superior and inferior, left superior and left inferior. Okay, any problem in it? No, sir. Sir. सर लास्ट वाली लाइन में प्रॉब्लम है, जो लास्ट लाइन आपने रीड करी है इसमें क्या है? The left lung is divisible by, जो left lung है वो भी दो लोब में डिवाइड है ना, superior और inferior, with the help of oblique fissure. वो तो राइट लंग में भी जी। तो लेफ्ट में भी है, लेकिन यहाँ पे oblique fissure है, दो ही लोब है, वो तीन लोब में था। ओके सर।
नहीं मतलब क्या आप मुझे समझ में नहीं आया व्हाट यू वांट टू आस्क। हाँ हेलो। सर हो गया क्लियर। अरे तो फिर सर तो भाई दोनों में डिवाइड है तो दोनों में ही होगा ना। देखिए एक बार डायग्राम देखिए यहाँ पे। लुक लुक द डायग्राम। लुक द डायग्राम यस प्रॉपरली। सर हो गया, हो गया। So any problem in it बच्चों? No, sir. नो सर। नो सर। Okay, now come. So internally lungs are made up of internally lungs are made up of branching network of bronchi, bronchioles and alveoli. Okay, the network of bronchi includes primary, secondary and tertiary bronchi. Okay, alveoli are the main sites where actual diffusion of gases, oxygen and CO2 takes place between the blood and atmospheric air. Any problem in it? नो सर। नो सर। So ये डायग्राम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, है ना? ठीक है, ओके। सर ये टर्मिनल ब्रोंकियोल टर्सरी ब्रोंकी ही है। नो 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 नो, ब्रोंकाई के बाद में स्टार्ट होगा ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई ऊपर तक रह गया। ओके ब्रोंकाई तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई देन स्टार्ट होगा ब्रोंकियोल। ओके सर। ओके यस सर। आप देखिए ना यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए ये टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, then alveolar duct, then atria, then alveolar sac, then alveoli. सर ये ब्रोंकियोल को 3 रीजन में डिवाइड कर रखा है ना। हाँ, ओके सर। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, then टर्मिनल ब्रोंकियोल, then रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और ब्रोंकाई को भी 3 में डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। हेलो, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें तो कितने एल्वेलाइज होते हैं? सर 300 300 मिलियन। million alveoli present in both lungs. दोनों लंग्स में मिला के कितने एल्वेलाई मिलेंगे आपको? 30 करोड़। यस 300 million, है ना? एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर? यस सर। द आउटर लेयर ऑफ alveoli is made up of elastic membrane. जो एल्वेलाई की बाहर की मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होगी? किससे बनी होती है ये? हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका, डोंट वरी। इलास्टिक मेम्ब्रेन किसकी बनी है ये? इलास्टिक मेम्ब्रेन। जस्ट मिनट, मैं एक पिक्चर भी शेयर करती हूँ इसके साथ। जस्ट अ मिनट। Okay, outer layer of the alveoli is made up of elastic
membrane, and the inner layer जो है that is made up of simple squamous epithelium. किसकी बनी है inner layer? Simple squamous epithelium. Okay, clear? Yes, sir. तो देखिए ये है ना, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. ओके, the Yes, sir. squamous cells of alveoli, क्या कहते हैं उन्हें? नीमोसाइट. Pneumocyte. नीमोसाइट. देखिए नीमो टर्म जो है दैट इज ऑलवेज यूज फॉर द एयर. किसके लिए? जहाँ एयर से रिलेटेड, जैसे निमेटोफोर प्लांट, आपने सुना होगा प्लांट्स में निमेटोफोर्स होता है ना, तो नीमो टर्म इज ऑलवेज यूज फॉर लाइक द पार्ट विच इज कनेक्टेड विद द एयर, है ना कहीं से एयर से कनेक्टेड है. समझे मेरी बात? हेलो Yes. बच्चों. तो नीमोसाइट 1 जो है दे हेल्प इन द गैसियस एक्शंस. नीमोसाइट 1 किस में हेल्प करेंगे? गैसियस एक्शंस में. नीमोसाइट 1 किस में हेल्प करेंगे? गैसियस एक्शंस. ओके, हेलो बच्चों. तो ये जो Yes, sir. ये जो स्क्वेमस सेल्स हैं, ये 2 टाइप की सेल्स होती हैं, नीमोसाइट 1 और नीमोसाइट 2, तो हेल्प इन द गैसियस एक्शंस. और जो लार्जर है, बड़ी जो सेल्स होती हैं, नीमोसाइट 2 जो सेल्स हैं दे आर द लार्जर सेल्स एंड दे प्रोड्यूस लासिथिन. अ फॉस्फोलिपिड. आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है? यस सर. Sir. Yes, sir. उसमें Yes, देखा था sir. फॉस्फोलिपिड. Yes, sir. Yes. Yes. एक Yes, sir. स्ट्रक्चर भी है उसमें, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर भी बना है इसका. Hmm. इस फॉस्फोलिपिड का काम क्या है? सर ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है. अरे बाप रे, हियर इट एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट टू minimize the surface tension. Clear? Here it acts as a surfactant to minimize the surface tension. तो ये जो है एल्वुलाई के बीच में मिलेगा, और ये एल्वुलाई के बीच में जो सरफेस टेंशन उसको क्या करेगा? कम करेगा. समझे? सर समझ नहीं आया कुछ ढंग से. आएगा आएगा आएगा. कहाँ से नहीं आया ढंग से समझ में? बताओ. लेसिथिन. ये सर लेसिथिन मतलब पूरे एल्विलाई में प्रेजेंट होता है या कहीं पे बीच में ही सिर्फ? नहीं, एल्वुलाई के बीच में प्रेजेंट होगा यहाँ. सर ये हाँ. समझ में सर्फेक्टेंट टू और सरफेस टेंशन कहाँ पे अरे होता है? रुको ना, अभी मैंने कुछ बोला है क्या? आएगा. है पैसेंस ना बेटा, है पैसेंस, आपको समझ में आएगा. अभी मैंने खत्म कहाँ किया? मैंने बोल दिया हो गया, जाओ आप, छोड़ दिया मैंने आप. हाँ, अभी बोला है क्या मैंने? ऐसे छोड़ दिया आपको? नो सर. है पैसेंस बेटा. सरफेक्टेंट का मतलब पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है. आपने साबुन तो देखा ही होगा, क्लोथ्स वगैरह वॉश करते हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर देखा है? Yes, sir. यस. तो ये जो निरमा पाउडर ये सब जो है, ये क्या है? ये चीज क्या करते हैं ये? सर ये डर्ट को निकालते हैं. क्यों डर्ट को क्यों निकालते हैं? कैसे निकाल देते हैं डर्ट को? इनके पास क्या है? कुछ क्या चाकू लेके आते हैं क्या? ये डर्ट को निकाल देते हैं क्या? सर ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से हो जाता है. अच्छा, इतना खतरनाक लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो? सिंपल भी बोल सकते हो कुछ. सर मिसल फॉर्मेशन की वजह से. वाटर सॉल्युबल. देखिए सिंपल है. ये पानी के सरफेस, आपको मालूम है, आपने देखा होगा, भाई सफाई तो नॉर्मल पानी से भी की जा सकती है, उसमें सोप डालने की क्या जरूरत है? हम्म. और आपने सर- अगर और भी ज्यादा आपको क्लीन करना होता तो सुना होगा आपने, लोग गर्म पानी में डालते हैं. गर्म पानी में डालते हैं, सुना है? गर्म पानी में क्लोथ्स डालते हैं, मतलब पानी को गर्म करके Yes, फिर sir. क्लोथ्स डालते हैं. क्यों ऐसे क्यों करते हैं? सर उससे अच्छे से साफ होते हैं. क्यों अच्छे से क्यों साफ हो जाते हैं? गर्म पानी अच्छे से साफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ठंडे पानी का सरफेस टेंशन
ज्यादा होता है और गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम होता है। अगर पानी का सरफेस टेंशन कम होगा तो पानी इजीली कपड़ों के जो पोर्स हैं उनके अंदर घुस जाएगा और डस्ट को रिमूव करेगा वहां से। नहीं समझे? हेलो? यस सर, समझ गए। यही काम सोप का है। जो सोप है ना, वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करेगा। यानी एक तरह से समझ लो पानी को कैसा कर देता है, पतला। पानी इजीली छोटे छोटे पोर्स में एंटर कर सकता है, तो ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं। अब है ना, तो सर्फ ऐसे ही क्या होता है, जन्म के समय आपने देखा होगा, बर्थ के समय जो लंग्स होते हैं वो बिल्कुल, आपने कभी वो साइकिल का ट्यूब देखा है, साइकिल का ट्यूब नया? हेलो? यस तो यस नया सर। जो साइकिल का ट्यूब होता है कैसे दिखता है, कैसे दिखता है वो? कोलैप्स, बिल्कुल मार्केट से आता है, आपने देखा होगा, वो एकदम कोलैप्स रहता है, कोलैप्स रहता है, पूरा एकदम पिचका हुआ, पिचका हुआ। हेलो? हाँ यस सर। जब उसमें यस एयर सर। डालते हैं तो वो पिच ऐसे फूलता है, इन्फ्लेट होता है। समझे मेरी बात? ऐसी यस ऐसी बच्चों के लंग्स जो हैं, उनके जो एल्वुलाई है, वो पूरी तरह से कैसे रहते हैं, कोलैप्स्ड। कैसे रहते हैं, पूरी तरह कोलैप्स से रहते कोलैप्स्ड। और जब उनमें एयर आती है तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ऐसे फूलते हैं। समझे? नहीं समझे? यस हेलो? सर जब एयर आती है तो फिर वो फूलते हैं। समझे? अब अगर अगर उनके बीच में लैसिथिन नहीं होगा, अगर एल्वुलाई के दो मेम्ब्रेन के बीच में लैसिथिन नहीं होगा, तो आपको मालूम उनका सरफेस टेंशन बड़ा रहेगा और वो इन्फ्लेट नहीं होंगे, वो फूलेंगे नहीं, वो चिपके रह जाएंगे। तो लैसिथिन उन दोनों मेम्ब्रेन को अलग करता है और लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। नहीं समझे? सर, मतलब वो यस। सरफेस सर टेंशन एक को बार दोबारा बता घटा दीजिए। देता है, जिससे कि वो दोनों हाँ हाँ आपस में चिपक नहीं पाते ढंग से, और जिससे वो फूल जाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, सर्फेक्टेंट है, तो सर्फेक्टेंट जो है वो उनको अलग कर देता है, जिससे वो फैल जाते हैं। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो ये चिपके रह जाएंगे और वो लंग्स इन्फ्लेट नहीं होंगे। समझे मेरी बात? हेलो? यस सर। यस सर। समझे या नहीं समझे? सर फिर लेफ्ट वहाँ पे पहले से प्रेजेंट होता है या बाद में प्रोड्यूस होता है? नहीं, जैसे ही बर्थ के पहले तक, पहले बर्थ का टाइम आता है, वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? ओके सर। और इसीलिए फिर इसलिए आपने देखा होगा। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो, बोलो। और सर फिर जब वो एक लिमिट से एक्सटेंड होता है तो फिर लंग्स फूलने लग जाते हैं, एल्वियोले फूलने लग जाते होंगे। हाँ हाँ, एक बार फूल गया। देखिए, आपने कभी मार्केट से बैलून तो फ्लाई होगा ना, बैलून फुलाया है? यस सर। तो बैलून जब आप मार्केट से लेके आते हो तब कैसे चिपका हुआ रहता है, रहता नहीं रहता? यस सर। लेकिन एक बार आप फुला देते हो, उसके बाद में हवा निकाल देते हो, तो क्या वो वैसे ही पिचका हुआ रहता है क्या? क्या वो नो वैसे ही नया जैसे मार्केट में आता है वैसे ही कोलैप्स हो जाता है क्या, बिल्कुल वैसे ही चिपक नो जाता है? नहीं। नो सर। और वो हमेशा ही स्लाइट इन्फ्लेटेड रहेगा, एक स्लाइट अमाउंट ऑफ एयर उन दोनों के बीच में हमेशा ही रहेगी, यस सर। क्योंकि पहले 100% कोई एयर नहीं थी वहां पर। समझे मेरी बात? लेकिन जब एक बार एयर वहां आ गई है तो अब एयर पूरी तरह से तो वहां से नहीं निकलेगी ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द एयर उस जगह को भरने के लिए तो रहेगा ही ना। यस सर। मेरी बात समझे नहीं सर भाई? आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के अंदर एयर है या नहीं है? सर है। है ना? तो उतनी भाई, ना ज्यादा है ना कम है। आपको आपका ऐसा नहीं, आपके आपके बाल हिल रहे हैं वहां पे, वो उतनी एयर है जो रूम को एकोमोडेट करने में यूज हो रही है। अगर हवा तेजी से चलेगी तो फिर एक्स्ट्रा हवा आएगी तो आपको महसूस होगी। नहीं यस समझे सर। मेरी बात? समझे मेरी मेरी बात समझे, नहीं समझे? समझ गया। क्लियर? तो आप एक बार फूलने के बाद में एक सर्टेन अमाउंट जो एयर का है वो हमेशा वहां रहेगा। समझे नहीं समझे मेरी बात? यस सर। यस। तो जो लेसिथिन है, दैट हेल्प इन द इन्फ्लेटेशन ऑफ द लंग्स आफ्टर बर्थ। इसलिए आपने देखा होगा, आपने देखा बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। यस यस सर। क्यों रोते हैं? सर, क्योंकि वो जो
म्यूकस वगैरह जो उनके आसपास का फ्लूइड होता है वो उसको निकालते हैं ना रोने के साथ ही। तो निकालते हैं तो उनको मालूम है कि रोएंगे तो निकल जाएगा, ऐसा क्या? नहीं सर, और फिर वो जब पहली सांस इसको क्यों सर ऐसा को मैंने सुना था कि जब वो पहली सांस ढंग से ले पाए इसलिए वो रोते हैं। अगर वो रो नहीं रहे तो उसका मतलब है कि जिंदा नहीं है, उनका ढंग से काम नहीं हो रहा। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा एक बार और। सर बच्चे का रोना ना जरूरी होता है, अगर वो रोता नहीं है ना तो ये शक करा जाता है कि कहीं बच्चा मरा हुआ पैदा तो नहीं हुआ। नहीं तो ये बच्चे को पता है कि देखो मैं अपना शक दूर कर दूं अपने माँ बाप को, मैं रो दूं, ऐसा क्या? नहीं सर, जब वो पहली सांस ढंग से ले पाए इसलिए वो रोता है, ऐसी कुछ सुना था मैंने, ढंग से उसे पता नहीं है। नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी बात, वो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये बच्चे को पता है क्या कि मैं सांस ले लूं नहीं तो लोगों को लगेगा मैं मरा हुआ तो नहीं हूँ। सर नहीं पता। सर अगर सांस ही नहीं लेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। अरे तो सांस नहीं लेगा खुद ही मर जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब रोता क्यों है तो? हम क्या सांस लेने में रोते हैं क्या? हम्म। सर एयर एंटर करने पे कुछ वोकल कॉर्ड्स इस तरह से वाइब्रेट होती होंगी कि क्राइंग साउंड आ क्योंकि सर वो पहली बार एयर एंटर करती है ना, तो पहले जैसे हम पहली बार अगर हवा बैलून में हवा डालते हैं तो उस टाइम ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, तो हाँ, इसलिए वो रोता है, तो फिर ज्यादा फोर्स से हवा आती है अंदर। और फिर तो जब एक क्राइंग बार वो साउंड आती है, तो क्राइंग साउंड आती है, लेकिन वो क्राई साउंड नहीं है, वो तो बच्चे एक्चुअली रोते हैं, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ रोते हैं। ऐसा लाइक पूरा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ क्राई कर। सर वो जो जो वॉर्म में होते हैं तो उनकी वो फेवरेबल कंडीशन में रह रहे होते हैं, और जब वो बाहर होते हैं तब उन्हें ये लगता है कि अभी भी हम फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन वो अनफेवरेबल हो जाता है, वो एक तरह से एलियन होता है हमारे लिए, तो इसलिए वो मतलब रिस्पॉन्स करते हैं रोने के रोकर लिए। रोकर रिस्पॉन्ड करते हैं, हंस के क्यों नहीं करते? हंस के क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते? हंस के भी तो कर सकते हैं। हा 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 हा, मैं आ गया, देखो मैं आ गया, ऐसे भी तो रिस्पॉन्ड कर सकते सर शायद रोना सबसे इजी रिफ्लेक्स आर्क होगा उनके लिए। हैं। ऐसे आपने कहीं पढ़ा है कि रोना इज इजी? रोना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब। कौन कहता है रोना इजी है? कहीं पढ़ा आपने ऐसे किसी बुक में रोना क्राइज वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क? हम्म। यस। अनामिता। हेलो। यस हेलो सर। बेटा। यस सर। कहीं पढ़ा आपने रोना आसान है? लोग तो बड़ी मुश्किल से रोते हैं। हम्म। सर शायद तभी ऑर्गन्स उनके वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए छोड़िए। एक्चुअली व्हेन एयर इंटर्स, अभी तक उनके लंग्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नया ट्यूब लेके आते हैं ना मार्केट से, ऐसे बिल्कुल कोलैप्स्ड। जब एयर पहली बार अंदर आती है तो ऐसे एल्वुलाई की दोनों वॉल जो है ना वो खिंचती हैं, तो चर नहीं समझे, एक खिंचती हैं आपस में, causes a tremendous pain, that's why kids cry after birth। नहीं समझे? सर फिर से बता दो। दोनों एल्वुलाई जो है कोलैप्स्ड है ना, जब एयर अंदर आती है तो ये जो मेम्ब्रेन है ना एक दूसरे से खिंचती है, चर नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गया सर। है ना? एंड दिस कॉजेज ट्रेमेंडस पेन, दैट्स व्हाई। समझे? यस सर। यस। आइए देखें। तो देखिए है ना, तो आउट नीमोसाइट है ना, लेसिथिन आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो लेसिथिन इज सर्फेक्टेंट, लेसिथिन इज सर्फेक्टेंट। सर हाँ। सर मतलब उनका लंग वार्म में काम नहीं कर रहे होते। नो नो, उस समय तो वो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। प्लासेंटा है ना उस समय, समझे? यस सर। So lecithin is surfactant which prevent the collapsing of the alveoli by reducing the surface tension. It is important to inflate the alveoli in newborns just after birth. The children who cannot produce lecithin in their alveoli at birth suffers from, देखिए disease, देखिए very very important disease it is, respiratory
देखा, डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसे आरडीएस कहते हैं, इसे आरडीएस, नॉट आरडीएक्स। ओके, आरडीएक्स नहीं है, आरडीएस। देख गया? यस सर। So this is called respiratory distress syndrome and this is also called atelectasis. और क्या कहते हैं इसे? atelectasis. Clear? यस सर। And need lots of effort to overcome surface tension, a water layer of alveoli. Such infants are kept in ICU till they start producing lecithin. समझे? तो जब तक जो है वो lecithin बनाना नहीं शुरू कर देते, इनको कहाँ रखा जाता है? आईसीयू। क्लियर? सर हाँ बेटा। सर जैसे जो जो ज्यादातर बच्चे डिलीवरी के 9 महीने के रजिस्ट्रेशन पीरियड से पहले हो जाते हैं डिलीवर, उनके अंदर मैंने ज्यादातर देखा है ना कि ऐसी चीजें होती है कि ढंग से उनका लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट नहीं बना होता, इसलिए उनको आईसीयू के अंदर रखते हैं ना। रखते हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके सर ये Clear? ओवरकम सरफेस टेंशन का समझ नहीं आया। I need lots of effort to overcome the surface tension of the water layer on alveoli. Such infants are kept. तो अब जब उनके पास लेसिथन नहीं होगा तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी ब्रीथ करने में, सरफेस टेंशन को कम करने में, तो इसलिए उनको आईसीयू में रखा जाता है। ये बोल रहे हो? सर तो फिर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्यों लिखा है? वाटर कहाँ से आ गया इसमें? अरे तो एल्वेलाई के बीच में फ्लूइड जो है वो तो पानी ही है ना, एक तरह से। अच्छा नहीं समझे? समझ गया सर। सर जब इनमें लेसिथिन फिर प्रोड्यूस नहीं होता तो उससे पहले तक वो सांस कैसे ले पाते होंगे? नहीं तो उनको वेंटिलेटर वो सब पे रखा जाता है, उनको माउथ टू माउथ वो सब ब्रीदिंग दिया जाता है, जो होता है ना, बाहर से सर उनको ब्रीथ किया जाता है। हेलो? सर मतलब आर्टिफिशियल तरीके से? हाँ, तभी तो आईसीयू में रखा हुआ है उनको। आईसीयू में क्या उनको मजे करने के लिए रखा है? इसलिए तो रखा है आईसीयू के अंदर, है ना। सपोर्टिंग मशीन जो है, सपोर्ट लाइफ सपोर्टिंग मशीन जो है, उनका यूज किया जाता है उनको जिंदा रखने में, और मेडिसिन वगैरह दी जाती है उन्हें, जैसे वो जल्दी प्रोड्यूस करें सर्फेक्टेंट। ठीक है? यस सर। ओके, चलें क्या आगे? यस सर। यस सर। एल्वेलाई वॉल कंटेन्स पोर्स। उन पोर्स को क्या कहते हैं? पोर्स ऑफ कोहन। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स ऑफ कोहन, जिससे गैसीय एक्सचेंज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गैसीय एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्लीज हो जाएगा। ओके। यस सर। लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स भी होती हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जस्ट मिनट। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? डस्ट सेल्स, है ना। डस्ट सेल्स क्या है? दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स इन द एल्वेलाई। ये जो डस्ट वगैरह अंदर जाता है उनको इनगल्फ करते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उनको इनगल्फ करते हैं, है ना। सर फाइगोसाइटिक सेल्स क्या है? फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करने वाली प्रोटेक्शन के लिए डब्ल्यूबीसी है ये। फैगोसाइटिक नहीं आते? डब्ल्यूबीसी, फैगोसाइटिक सेल्स, डब्ल्यूबीसी, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। हेलो? जी सर आगे समझ। तो लंग्स के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, है ना, उनका नाम क्या है? डस्ट सेल। क्या है? मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को खाने वाली जो सेल्स हैं, जो डब्ल्यूबीसी हैं, उनको लंग्स में क्या कहते हैं? डस्ट सेल। क्लियर? यस सर। Mammalian lungs are solid and spongy. There is no hollow central cavity. Muscles are absent in the lungs, so power of self-contraction and self-expansion is absent. मैंने आपको बताया था कि जो भी होता है वो चेस्ट कैविटी के साथ के हेल्प से होता है। समझे मेरी बात? उनके पास में कोई मसल्स नहीं है, तो उनमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन की कैपेसिटी नहीं है। समझे?
बच्चों क्लियर हुआ? यस सर। कोई परेशानी आपको इसमें? सर फिर हम्म? लंग बने किस चीज के होते हैं? हेलो, लंग किसके बने होते हैं मतलब? सर मतलब कोई मटेरियल तो होता होगा जिसके वो बने होते होंगे, कोई मटेरियल है तो एंडोडर्मल है तो एंडोडर्म से बने। निमोसाइट सेल्स हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं, सब एल्वेलाई है, तो ये सेल्स तो ये सेल मिलके ही तो लंग्स बना रहे हैं। यस हाँ, सर। एल्वेलाई जी मिलके ही तो लंग्स बना रहे हैं। उनके अंदर ब्रोंकाइज हैं, वो सब है, वो वही लंग्स है सब। ओके सर। भाई लंग्स तो क्या है, लंग्स की यूनिट एक है भाई, लंग्स की जो जो यूनिट है वो क्या है, एल्वेलाई है। और एल्वेलाई के अंदर सिंपल स्क्वेमस सेल्स हैं, निमोसाइट्स हैं। मटेरियल क्या है, ऐसे थोड़ा ना कि वो मटेरियल का मतलब वो मेटल का है या उसका है, सब सेल्स हैं, ये सिंपल स्क्वेमस सेल्स है। एपिथेलियल टिश्यू है। हेलो, यस सर। एनी प्रॉब्लम इन इट? नो सर। नो सर। ओके, तो हम आगे चलेंगे बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, जस्ट अ मिनट। जैसे एल्वेलाई इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, पर मतलब इनको कवर भी तो करा होगा ना, जैसे एपिथेलिया वगैरह की किसी लेयर ने, हाँ, मतलब तो जिसको हम पूरा पेरिटोनियम लंग बोल सके। प्लूरल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है ना उसको, तो ये सब अरेंज्ड है उसके अंदर। उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाइज हैं, उनको प्लूरल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। यस सर, मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन ये कवरिंग, उसके अंदर यही सब हाँ, ये सारे एल्वेलाई और ये स्ट्रक्चर। पूरा हाँ जी, पैसेज है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझे? ओके सर। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। नो नो सर। और सर ये 10 सेल्स सिर्फ एल्वेलाई के अंदर ही होंगे, मतलब ब्रोंक्यूल्स वगैरह में नहीं हो सकते? एल्वेलाई में होंगे, एल्वेलाई में नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में। सर। ओके, चलें आगे। यस सर। यस सर। ओके, आइए देखें नेक्स्ट। नाउ हम बात करेंगे आपसे किसकी, ब्रीदिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, यस सर। क्लियर? ओके, सो ब्रीदिंग इन जो ब्रीदिंग है दैट मीन्स क्या है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग इज अ intake and exhale of इनहेलेशन एक्सहेलेशन। है ना, इनहेलेशन ऑफ द एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, है ना, एयर का इनहेलेशन एंड एयर का एक्सहेलेशन, एक रिदमिक इनहेलेशन एंड रिदमिक एक्सहेलेशन ऑफ द ईयर। समझे? क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब इससे पहले कि हम ब्रीदिंग में जाएं, हम ब्रीदिंग में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं उन सब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोरेसिक केस। किसकी बात करेंगे? थोरेसिक केस, है ना, पूरा एक केस जो है ना, ये जो पूरा केस है, तो केस में ऊपर सबसे क्या मिलेगा, ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ऊपर क्या है? आप थोरेसिक के बोल रहे हो सर, ये रिब केज ही है? हाँ, वही अपन बात कर चुके हैं ना इसके बारे में, सेंटर वेंट्रल वो सब बात कर चुके हैं ना। यस सर। नहीं समझे? सर समझ गए। हाँ, समझ गए। तो इसमें क्लैविकल कहाँ है? ये क्लैविकल जानते हो, ये वाला, ये जो बोन है यहाँ क्लैविकल है। यस सर, जो शोल्डर बोन। हाँ, शोल्डर पे है ना। ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। हाँ, ब्यूटी बोन, बिल्कुल। तो क्लैविकल एंटीरियर पार्ट में है, डायफ्राम पोस्टेरियर पार्ट में है, ठीक है। स्टर्नम एंड रिब्स वेंट्रल में है, वर्टिब्रा कॉलम एंड रिब्स डॉर्सल में है, ये डॉर्सल है, ओके। और रिब्स लैटरल में, भाई वेंट्रल में स्टर्नम भी मैं दिख रहा हूँ आपको। यस सर। यस तो सर। वेंट्रल में रिब्स हैं और थोड़ा सा सॉरी स्टर्नम है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट रिब्स का भी है। तो रिब्स
वेंट्रल में भी आ जाएंगी, लैटरल में भी आ जाएंगी और डोर्सल में भी आ जाएंगी, पीछे भी चली जाएगी। नहीं समझे? समझ गए ओके सर, समझ गए। हाँ, तो Yes. डायफ्राम इज पोस्टीरियर, स्टर्नम एंड रिब्स जो है वो क्या है? वेंट्रल। वर्टिब्रा कॉलम एंड रिब्स क्या है? डॉर्सल। और लेटरल में सिर्फ रिब्स। समझे? ओके। सर क्लेविकल कौन सी बोन है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, देखो इधर मैं दिख रहा हूँ आपको, एक Yes. बीटी बॉन लड़कियों में बहुत उठी हुई, इस अगर ये बहुत उठी हुई होती है, दिख रही है? नहीं दिखा? सर कॉलर बोन जैसे कहते हैं। हाँ, कॉलर बॉन ही है। ओके सर, आ गया समझ में। आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये कॉलर बॉन है ना? कॉलर बॉन, बीटी बॉन सब कुछ कहते हैं इसे। तो ये दिस इज क्लैविकल, तो ऊपर से क्लैविकल है ना? वेंट्रल में आपका स्टर्नम हो जाएगा, थोड़ी रिब्स हो जाएंगी, लेटरल में रिब्स हो जाएंगी, डॉर्सल में रिब्स थोड़ी हो जाएंगी, और वर्टिब्रा कॉलम हो जाएगा डॉर्सल में, और नीचे क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर में डायफ्राम। ओके। सर एक बार पोस्टीरियर पोजीशन बता दीजिए कि मतलब देखेंगे कहाँ से, एक तरह से समझ में नहीं आया। अच्छा, एक मिनट। देखें, देखिए इधर, ए ऊपर की तरफ एंटीरियर, नीचे की तरफ पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, लैटरल। एंटीरियर, पोस्टीरियर, नीचे की तरफ पोस्टीरियर, एंटीरियर। तो ऊपर क्या है? क्लेविकल। नीचे क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम। नहीं समझे? समझ गए। ओके, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ एल्वियोलाई से होगा या फिर जो मतलब जो जैसे हमने रेस्पिरेटरी जोन एक्सचेंज रेस्पिरेटरी वाले जोन में जोन में तो होगा और भी। सबसे ज्यादा। देखिए, रेस्पिरेटरी जोन में से स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा उस पार्ट में होगा, एल्वियोलाई वाले पार्ट में सबसे ज्यादा होगा। ओके नहीं सर। समझे? क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके। सो अभी आज जो पढ़ाया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को किसी भी तरह की, तो मुझे बताएं। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? कुछ नो पूछना सर। चाहते हैं? सर हम्म सर हम्म सर ये रेस्पिरेशन वैसे कितनी क्लासेस में ओवर हो जाएगा चैप्टर? कौन बोल रहा है? अनामिता बोल रही है, अनामिता। यस सर। ऐसे तुम ऐसे पीछे क्यों पड़ी हो उसके, कितनी जल्दी खत्म हो जाए, कितनी जल्दी खत्म हो जाए, क्यों? सर हेलो। ऐसे ही। कुछ जल्दी हो जाएगा खत्म क्या? मुझे लगता है अभी, और ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। अभी कम से कम मुझे लगता है 5 क्लासेस तो लग जाएंगे, 5 क्लासेस में खत्म होगा। ओके सर। ओके, और कुछ? सर डीपीपी। डीपीपीस, ओके। डीपीपीस आपको उसमें ऑनलाइन नहीं आ रही है आपके ऐप पर क्या? सर अभी तो नहीं। सर इश्यूज के बाद से आई नहीं कोई डीपीपी। ओके, चलिए मैं बात करता हूँ, है ना? अभी तो। ओके। और इसके अलावा कोई और इश्यू, कोई और परेशानी? नो सर। ओके, चलिए तो फिर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? टेक केयर टिल देन, बाय बाय। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय थैंक बाय। यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय बाय बेटा, टेक केयर।